Good afternoon, everyone present here. We welcome our Honorable Secretary Al-Haj Shafiq Ahmad Sahab, members of management, members of MQI Alumni Association, all principals, teachers, and all students to this exciting motivational talk by a well-recognized IAS coach, Janab Samir Ahmad Siddiqui Sahab. He is widely known through hundreds of intellectual lectures on a variety of subjects available on YouTube and Facebook. Most importantly, on future of education in an age of machine learning and artificial intelligence. Most of his lectures are very popular and have been watched millions of subscribers. Samir Sahab has contributed our society under House of Wisdom course, shared summaries in a variety of subjects such as history, heritage and culture, geopolitics, economics, leadership science, futuristic education and religious philosophies. Through an entity established by him, Alex IAS has established 4 residential academies for IAS aspirants. Currently, a day IAS coaching center is being established in alliance with the MQI Alumni Association. Through this initiative, Alex is training people across the globe in futuristic sciences, competitive exams, and new age entrepreneurship through Alex app. Through excellence in competitive exams, they are developing highest quality intellectual traits and depth of understanding among people who are trained by them. Samir sir is actively promoting the furnace of perseverance to impart an alternate way of learning where an aspirant not only becomes well educated but excels in the fields of expertise and professions. On behalf of MQI institution, we wholeheartedly welcome you, sir. Now I will invite Dr. Mir Abbas Amir, President MQI Alumni Association, to say a few words. One day I was sitting like you are sitting today. I'm a graduate of this noble institution. There is a time in the future when people there will be, inshallah, there will be a time in the future when you will be standing here and there are some other youths sitting there. Inshallah. I just want to say one sentence that as an ex-graduate, we have formed an alumni association within the college, and through the alumni association, we are trying to address the needs of the youth and providing courses like IAS coaching, central government jobs, and leadership programs. So remember this and come to us if you have different needs. This is a side story. Coming back to the topic, I'm very excited to welcome Brother Samir, who is here. I also welcome the guests and principals on the dais.
and more so, I welcome you students who are audience. Listen to Brother Samir very carefully. Listen to Brother Samir very carefully. If you have brought notebooks, write down. In my view, Brother Samir is just like a beacon of knowledge and education. You know, beacon is the highest throwing light around the world. And I strongly believe that he is the candle now on an all India level who is trying to ignite old candles like me and young candles like you with knowledge and perseverance. I'm a follower of him in YouTube. I not only see one time his lectures, I see several times. So that's where, there's a lot of learning. 2 days before, I was reading something. I read this Urdu Shairi, and immediately in my mind, Samir Sahab appeared. हौसलों को परवाज़ चाहिए. All your ambitions, all your efforts, all your emotions, they need to fly, परवाज़. Okay? हौसलों को परवाज़ चाहिए. बस तुम्हारा साथ चाहिए. बस तुम्हारा साथ चाहिए. अब अंधेरे से निकलना होगा. अब for the community, every Muslim, every student, अब अंधेरे से निकलना होगा. इल्म का चिराग जलाना होगा. इल्म का चिराग जलाना होगा. बस तुम्हारा साथ चाहिए सिद्दीकी साहब. We will, in a small Brother Samir Sahab now. Yes, sir. Thank you so much, ma'am, for your introduction, and thank you so much, sir, for your each. May I now call upon Janab Mir Abbas Saghir Sahib, President MQI Alumni Association. Okay, sir. Now the time has come to invite Janab Samir Ahmad Siddiqui Sahib, IAS coach, to deliver this inspirational talk and enlighten the audience with the thought-provoking address. Over to you, sir. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma. Honorable distinguished personalities on the dais, our director sir Prabhu Devaji, our principal sir, again the principal sir, and our president sir, who was so energetic that I was feeling that I am the old candle. मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं हूँ ज़्यादा बूढ़ा जब मैंने उनके जोश को देखा. Honorable member NCRT Dr. Saeed Saab and other distinguished personalities and my dear students, आप लोगों का जोश देखकर मैं थोड़ा सा घबरा गया हूँ. I have become a bit nervous कि इतने एनर्जेटिक लोगों को मैं क्या पढ़ाऊँ. But I want to ask you one question. वहीं से शुरू करते हैं and then we can go forward. Do you study, everyone? So let me ask. अभी ये जो आवाज आ रही है ना, वो सब बंद हो जाएगी ऐसा लगता है. So do you study, everyone? Do you study for the sake of study or for the sake of exams? So they are very honest people. They say only for the sake of exam. तो जब भी हम सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तो एक जादू होता है. जादू क्या होता है सुन लीजिए. जैसे ही हम एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, रात दिन पढ़ते हैं, टैक्सी में पढ़ते हुए आते हैं, अपनी गाड़ी में पढ़ते हुए आते हैं, एग्जाम की बेल बजने से पहले तक बाहर खड़े रहकर पढ़ते हैं, और जैसे ही हमने पेपर लिखा जादू से सब उड़ जाता है. See, I am telling you that if you will keep clapping, I will become more nervous. So first hear me out. तो जैसे ही एग्जाम खत्म होता है, एक जादू होता है, काला जादू. हर चीज जो हमने उस सब्जेक्ट की पढ़ी थी वो हवा में इवेपोरेट हो जाती है और हमें कुछ भी याद नहीं रहता. So let me ask you one thing very nicely. Do you write in exam or do you vomit in exam? And आपने कभी उन लोगों से मुलाकात की है, वो मदर फादर से जो कहते हैं कि सर ये पढ़ने में बहुत अच्छा है. तो कहा ये पढ़ने में कैसे अच्छी है? ज्यादा तो अच्छी नहीं होती है. सर ये पढ़ने में बहुत अच्छी है. तो आप सुनना कितनी अच्छी है. दिल्ली में टॉपर्स को कोई फेलिसिटेट नहीं करता. दिल्ली में टॉपर्स को कोई फेलिसिटेट नहीं करता. क्यों? दिल्ली में 12th स्टैंडर्ड में दिल्ली में 97% एंड अबोव 38,000 स्टूडेंट्स हैं. 97% एंड अबोव दिल्ली में लाने वाले 38,000 बच्चे हैं. आई डोंट नो द काउंट अबाउट बैंगलोर, नहीं होगा, पर दिल्ली में 38,000 बच्चे हैं. उनको कोई फेलिसिटेट नहीं करता. क्यों? उनको फेलिसिटेट करने में 2 साल लग जाएंगे. 38,000 बच्चों को स्टेज पे बुलाना, फिर उनके लिए ताली बजवाना. और किसी ने कोशिश की कि लेट्स फेलिसिटेट सम ऑफ देम, तो सब बच्चे उदास हो. तो कहा यार टॉप किया है, इनाम मिल रहा है, उदास क्यों हो रहे हो? तो कहा ये इनाम किसी काम का नहीं है. बोले क्यों? वो सबको मिल रहा है. एवरीवन इज गेटिंग. अगर मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे मैं इनाम लेते हुए हूं तो उसके व्हाट्सएप स्टेटस पे वो इनाम लेते हुए, तो उसके व्हाट्सएप स्टेटस पे वो इनाम लेते हुए. तो दिल्ली में एक कहावत है, when everyone is
वीआईपी, एक्चुअली नो वन इज वीआईपी। आप समझ रहे हैं? लेकिन 97% एंड अबोव बच्चों से जब मैं उनको एड्रेस किया तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा, वो सारे फेल हो। सो लेट मी आस्क दैट क्वेश्चन टू यू आल्सो। कैन आई आस्क? पक्का? सुनना ध्यान से एंड लेट देयर बी अ प्रिंट ऑन साइलेंस। आई गिव यू वाटर, बिस्लेरी बॉटल नाउ। I give you a bottle, small bottle of Bisleri now. क्या आप उससे आग लगा सकते हो? Can you make fire out of that? I give you a small bottle of Bisleri now. Can you make fire out of that? 4-5 हैं जो अपने आप को सामने वाले के पीछे छुपा के बोले यस सर। सो हाउ यू, अच्छा लेट मी रीफ्रेज द क्वेश्चन। क्या पानी से आग लगा सकते हो? नहीं। पक्का ना? लेट्स बी ऑनेस्ट, थोड़ी देर बात करेंगे, ऑनेस्टली करेंगे। क्या पानी से आग लगा सकते हो? अभी पानी दिया तो आग लगा सकते हो? अब सुनना, यूपीएससी में, आईएएस में जहां मैं पढ़ाता हूं, वहां बच्चे पढ़ते कम हैं, अपने पढ़े हुए पे सोचते ज्यादा है। दैट इज द रियल एजुकेशन। तो जब यूपीएससी आईएएस की तैयारी करने वालों से पूछा क्या आप पानी से आग लगा सकते हो, तो दे सेड यस। बोले अगर बिस्लेरी की बोतल अभी दी तो का ठीक है, मैं अभी आग लगा सकता हूं, मुझे एक माचिस चाहिए और बिस्लेरी की बोतल चाहिए। तो बोले कैसे? तो कहा मैं सूरज में जाऊंगा, आई विल गो इनटू द सन एंड आई विल होल्ड द बॉटल एज अ लेंस एंड आई विल फोकस द रेज ऑफ द सन थ्रू दैट लेंस ऑन द फॉस्फोरस ऑफ मैच स्टिक। मैं बॉटल को लेंस की तरह पकड़ूंगा, सूरज की किरणों को फोकस करूंगा माचिस की तिल्ली पर। अब सोच कर जवाब देना, क्या आग लगेगी? क्या आग लगेगी? पक्का? ओके, सो लेट मी आस्क यू क्वेश्चन नंबर 2। डू यू बिलीव देयर इज अ गॉड? फिर से पूछता हूं, क्या अल्लाह है? कैन यू गिव मी हिज एविडेंस यूजिंग द सेम बिस्लेरी बॉटल? Prove me कि अल्लाह है, and I only want you to use that Bisleri bottle. सर वो लोग, कोई बोला सर कि सिर्फ एग्जाम में नंबर लाने के लिए पढ़ना है सर, कोई पूछा ही नहीं सर हमसे। अब देखो इधर, लेट मी शो यू अल्लाह। डू यू नो रॉकेट्स जो आसमान में जाते देखा? उसका फ्यूल नीचे चलता है, वो देखा? उसके फ्यूल में हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? और बाजू वाले फ्यूल में ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? अब दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्ब इज नॉट एटम बॉम्ब, इट इज हाइड्रोजन बॉम्ब। क्या है? हाइड्रोजन बॉम्ब इज 20 times more powerful than the atom bomb। पक्का? अब देखो यहां, वर्ल्ड का मोस्ट कंबस्टिबल सब्सटेंस हाइड्रोजन है। पक्का? एंड ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग। पक्का? वो याद है कैंडल वाला एक्सपेरिमेंट? एक मोमबत्ती रखी थी, उस पे ग्लास रखा था, जब ऑक्सीजन खत्म हुआ तो मोमबत्ती बुझ गई थी। मतलब बिना ऑक्सीजन की कोई चीज जल। पक्का? अब मैं एक सवाल पूछता हूं, 2 कंबस्टिबल और एक जो सपोर्ट करता है बर्निंग, इन तीनों को मिलाएंगे तो क्या बहुत ज्यादा आग पैदा करने वाला बम बनेगा? 2 हाइड्रोजन, द हाइड्रोजन व्हिच इज यूज्ड इन हाइड्रोजन बॉम्ब, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन व्हिच सपोर्ट्स इन बर्निंग, इन तीनों के मिलने से बनना क्या चाहिए?
नहीं, वो तो आपको मालूम है ना बनता है, लेकिन बनना क्या चाहिए? आग। कैसी आग? जैसी रॉकेट के पीछे होती है, ऐसी है ना। पर ये अल्लाह पाक है, दो भड़काऊ और एक जलाऊ को बोला कुन फयकून। ये तीनों मिलकर जला नहीं रहे, बुझा रहे। मैं किसकी बात कर रहा हूं? वाटर को साइंस में क्या बोलते हैं? आवाज नहीं है, क्या बोल रहे हैं? पक्का? अब आप सोचो, आप अपने दोस्त से बोलना यार वहां पे आग लग गई थी, बोले अच्छा फिर क्या हुआ? मैं गया बुझाने, अच्छा फिर? मैंने उस पर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन डाल दिया। तो दोस्त तो बोलेगा तो भड़क गई होगी, पर नहीं यार उल्टा हुआ। क्या? बुझ गई। आप समझ रहे हो? इसका मतलब है आपसे गलती हुई है। लेट्स एक्नॉलेज, आपसे गलती हुई है। क्या? आपको जब H2O पहली बार पढ़ाया था तो आप सिर्फ पढ़कर छोड़ दिए थे और अगले दिन एग्जाम में मुंह में हाथ डालकर वॉमिटिंग किए थे, लेकिन H2O के फॉर्मूला पर बैठकर सोचे नहीं थे। पक्का? पक्का? So let me give you the first formula today. आपको मालूम है ना 97% से ऊपर लाने वाले they fail in all entrance exams, they fail in UPSC, they fail in all IIT JEE exams। पता है क्यों? क्योंकि वहां वो पास होते हैं जो अपने पढ़े हुए पर समझते हैं, और वहां वो फेल होते हैं जो अपने पढ़े हुए को रटते हैं। Are you getting my point? Are you getting my point? So promise me the first thing today कि आज से, when I end the sentence, I want to hear it inshallah। आज से हम रटेंगे नहीं बल्कि अपने पढ़े हुए पर सोचेंगे। बोलो इंशाल्लाह। पक्का? पक्का? Now let me show you one very beautiful thing। We live in South India. Bangalore comes under South India। पक्का? South India is the most ancient part of land। बहुत एंशिएंट पार्ट ऑफ लैंड है साउथ इंडिया। इसे गोंडवाना लैंड कहते थे। When there was no human being, तब से ये पार्ट है ना, सुपर कॉन्टिनेंट का टूटा हुआ पार्ट है ये। So whenever you come to South India, you will always see lava deposition। लावा मालूम है ना सबको? जब वो सॉलिडिफाई होता है, it makes stone, black color stone। और जब वो ब्लैक कलर स्टोन टूटता है, इट मेक्स ब्लैक कलर सॉइल। क्या बनाता है? ब्लैक कलर। पक्का? अब सुनना ध्यान से दूसरी बात। लेट मी टीच यू समथिंग ऑफ यूपीएससी, फिर देखते हैं आप कलेक्टर बनोगे कि नहीं बनोगे। हम दावत में जाते हैं, देखा है दावत में गए तो खाना सब लोग जल्दी जल्दी खाना खाते हैं और निकलते हैं, भागते हैं। कभी दावत में कोई जाकर आप में से, आपके पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, दावत में कभी आप में से कोई जाकर दूल्हा दुल्हन को मिला है क्या? इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। खाना खाओ, 4-5 सेल्फी खींचो, भागो, ऐसे होता है ना। अब सुनना, दावत में टेबल लगे होते हैं खाने के, पक्का? तो जिसका टेबल किचन से करीब होता है उसको बिरयानी में बोटी का सप्लाई अच्छा मिलता है, ऐसे होता है। और जिसका टेबल जितना दूर होता है उतनी बोटी कम हो जाती है, और जिसका टेबल सबसे दूर होता है वो गुस्से में उठता है और वो लिफाफे में से 100 रुपया निकाल लेता है। ऐसी है ना।
नाउ कम बैक टू ज्योग्राफी, ध्यान से सुनना। जो ट्री जितना बारिश वाले इलाके में रहता है उसकी लीफ का साइज उतना बड़ा होता है। क्यों? बारिश बहुत होती है, उसको बॉडी की कमी नहीं, तो वो बहुत सारी बारिश में से जितना चाहिए एब्जॉर्ब करता है, बाकी बारिश छोड़ देता है। इसलिए लीफ का साइज बहुत लार्ज होता है, समझ में आया? और जितना हम समुंदर के करीब होते हैं यानी किचन के करीब होते हैं उतने बादल ज्यादा बनते हैं, और जितने बादल ज्यादा बनते हैं उतने जोर से बारिश होती है, और जितने जोर से बारिश होते हैं पत्ती का साइज उतना बड़ा होता है। पता? जैसे जैसे हम इंटीरियर में जाते हैं महाराष्ट्र में लीफ का साइज छोटा होता जाता है, दो ट्रीज के बीच में गैप बड़ी होती जाती है और पत्तियां एकदम छोटी छोटी होती जाती हैं, फिर मध्य प्रदेश में और छोटी हो जाती है, और राजस्थान में बिल्कुल बारिश नहीं होती, वहां डेजर्ट है, मालूम है ना सबको, रेगिस्तान, तो वहां लीफ अपने आप को कांटे की तरह रोल कर लेती है। क्यों? इसलिए कि पानी जितना कम है लीफ अपने को उतना छोटा करके पानी को उतना कंजर्व करती है, अब पानी जितना ज्यादा है लीफ अपने आप को उतना बड़ा करके उतना पानी हवा में उड़ा देती है, क्योंकि उसको कोई कमी नहीं है। लेकिन जहां कमी है वहां लीफ का साइज कांटे जैसा होता है, उस कांटे को हम कैक्टस कहते हैं। देखा है कैक्टस सबने? पता? अब सुनना लास्ट लाइन, उसके बाद क्वेश्चन पूछता हूं यूपीएससी के। नॉर्थ इंडिया में रिवर्स हिमालय के ग्लेशियर से मेल्ट होती है, मालूम है ना सबको, और जितनी गर्मी पड़ती है उन रिवर्स में उतनी बाढ़ आती है, मालूम है ना सबको, और वो उन माउंटेन से उतने पत्थर तोड़ के लाती है, पक्का, और तोड़कर अपने साथ बहा कर उन पत्थरों को वो छोटा करती है ना। तो जितना रिवर पत्थर को रगड़ के ले जाती है उतना पत्थर छोटा होता है, प्रॉमिस? पक्का? समझ में आया? अब सुनना, किसी ने हमको फोटो दिखाई और फोटो में उसने एक नेचर में खड़े होकर सेल्फी ली और हमको भेजी, और उसने कहा देख मेरी फोटो। हमने कहा तू केरला कब गया भाई? तो उसने बोला तुझे कैसे मालूम, मैं केरला में हूं। तो कहा वो तेरे पीछे जो पत्ती है ना उसका साइज बहुत बड़ा है, और केरला में ना बारिश बहुत होती है, और जिस पत्थर पे तू खड़ा है ना वो लावा से बना हुआ ब्लैक कलर का है, और तेरे पीछे जो मिट्टी है ना वो भी ब्लैक कलर की दिख रही है, तू पक्का केरला में है। वो हिल गया। थोड़े दिनों बाद उसने राजस्थान मध्य प्रदेश से फोटो भेजी, अब पीछे पत्ती का साइज इतना सा, और जो आसमान है उसमें एक भी बादल नहीं है, पत्ती का साइज छोटा है और रेड कलर की सॉइल है। उसकी फोटो देख के बोला भाई मध्य प्रदेश में क्या कर रहा? बोले देखो कैसे मालूम? कहा वो दिल्ली से एक आया था आईएएस कोच, फॉर्मूला बता के गया। जिस दिन से फॉर्मूला बता के गया मैं फोटो नहीं देखता, फोटो के पीछे पत्तियों का साइज देखता हूं, और फोटो के पीछे जो पत्ती का साइज है वो तुम्हारी फोटो का आधार कार्ड है। मैं सिर्फ फोटो देखकर बता सकता हूं तुमने किस राज्य में खिंचाई है। और मैं फोटो में आसमान में बादल की क्वांटिटी देखकर बता सकता हूं किस महीने में खिंचाई, और मैं सूरज की रोशनी तुम्हारे चेहरे पे जो पड़ रही थी उसको देखकर बता सकता हूं कितने बजे खिंचाई है। ऐसा आदमी कभी किडनैप हो सकता है क्या? मान लो आपको किडनैप करके ले गए किडनैपर और मध्य प्रदेश ले गए, और उन्होंने आपकी पट्टी खोली खाना खिलाने के लिए, आपने खाना चबाते चबाते बाहर पत्ती का साइज देखा और आप समझ गए कि ये मुझे नॉर्थ इंडिया में उठा कर लाए।
आपने खाना खाते खाते बाहर ग्लेशियर देखा और ठंडी लग रही है, आप समझ गए यार ये मुझे उठा करना एकदम ही नॉर्थ में लाए। जो पढ़ा लिखा होता है ना, असली पढ़ा लिखा, उसका चश्मा कोई और होता है। उसको क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन हॉल में नहीं मिलता, वो रास्ते में चलते हुए पत्थर और मिट्टी के कलर की जांच करता हुआ चलता है। जो असली पढ़ा लिखा होता है ना, उसके जैसा दुनिया में कोई नहीं होता। यहाँ देखो, एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, सुनना ध्यान से। अरे सुनो, आपको घर में सबसे अच्छा कौन समझता है? अम्मी। देखो, लड़कों ने तुरंत बोला अम्मी। हाँ, क्यों? जिस दिन से हम पैदा हुए हमें एक फ्री का वकील मिला हुआ, और वो हमारी माँ। और क्या खूब केस लड़ती है वो, सारे गवाह सारे सबूत हमारे खिलाफ रहते हैं, और सामने माँ खड़ी रहती है कि मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। क्या भाई, सब उसी ने किया है ना? जज में खोट है, गवाह में खोट है, सबूत में खोट है, मेरा बच्चा पाक साफ। ऐसी है ना? और जितनी लड़कियां पढ़ी लिखी होती है ना, उसकी एक वजह होती है। ध्यान से सुनना, मैंने आज तक